لیکن بنیادی ایشو آج کا یہی تھا، اور ہم اور الیکشن کمیشن اس مدعے پر ایک پیج پر، ویسے تو ہم نے بہت ساری معروضات اور بھی کی ہیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اصل موضوع ڈائلیوٹ ہو جائے گا، اس لیے میں اصل موضوع پر ہی فوکس کروں، اور یہ مین مدعا تھا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو۔ اگر بلا ضرورت تاخیر ہوتی ہے انتخابات میں تو یمکن پاکستان کا کیا موقف ہوگا، کیا اسٹینڈ لیں گے آپ؟ اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا میں دوہرا دیتا ہوں کہ غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو میری خواہش، میرا مطالبہ سب کچھ ہے۔ آئین کے تقاضوں کو، نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ سر یہ میرے خیال میں اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال کریں گے میرا یہی جواب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے بنیادی طور پر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ بتاتے کہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں رد و بدل ہونا ہے، ضرور ہونا ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین ہے تو آئین کے آپ اس آرٹیکل کو جانتے ہیں، آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن آئین کی ترمیم کے لیے آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے۔ آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے تو یہ حلقہ بندیاں پر عمل درآمد کیسے ہو سکے گا، یہ بتا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سینئر صحافی ہیں تھوڑا سا آئین کو سمجھ لیں۔ قومی اسمبلی نہیں ہے تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تو سیٹوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتی، ہم بھی نہیں کریں۔ بین الصوبائی سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن اندرون صوبہ جو بھی آئین میں کسی بھی صوبے کی سیٹیں ہیں، اگر وہاں مختلف ضلعوں کی آبادی میں اضافے کا تناسب کسی ایک ضلع یا دو ضلع کا باقی ضلعوں سے زیادہ ہے، تو بھائی اصل میں تو یہی مسئلہ 5 مردم شماریوں سے بھگت رہے کہ ہمیں ڈس انفرینچائز کیا جاتا ہے، ہماری آبادی کو لاپتہ کر کے، کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، دبا کے انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ڈس انفرینچائز کیا جاتا ہے، ہمیں ہماری آبادی کے مطابق نمائندگی نہیں دی جاتی، اور پہلی مرتبہ مردم شماری ڈیجیٹل ہوئی، ہم نے نگرانی چوکیداری کی، صوبائی حکومت کی پالیسی اور چور کو پکڑ کے دیا، جو وہاں کی انتظامیہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی پالیسی کے تحت کراچی اور سندھ کے شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر کم گنا جاتا ہے اور اپنے ضلعوں اور شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کا گروتھ ریٹ پہلی مرتبہ پاکستان میں سب سے زیادہ 4.10، پورے پاکستان کا ایوریج 2.5%، کراچی کا یہی تو ہم 50 سالوں سے رو رہے ہیں۔ تو آپ تو ہمارا ساتھ دیں کہ بھائی آپ نے کسی تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر اپنا حق نہیں مانگا، لیکن اگر آپ کا حق کسی نے غصب کیا تو آپ نے اپنی آبادی کو بازیاب کرانے کا عمل شروع کیا۔ 70 لاکھ آبادی بازیاب ہوئی اس مرتبہ، 4.10 گروتھ ریٹ ہے ہمارا پر ایئر۔ 6 سالوں میں کراچی کی آبادی میں 27% اضافہ، پورے ملک کے تمام ضلعوں کی آبادی میں 13%، 12% اضافہ۔ مانا گیا کہ بھائی ہاں قدرتی آبادی بھی کراچی میں بڑھ رہی ہے اور پورے ملک سے بھی انفلکس کراچی میں ہو رہا ہے، تو اندرون صوبے میں آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بلوچستان کا کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی، قومی سیٹیں نہیں بڑھ سکتی نا، آئین میں نہیں بڑھ سکتی۔
सिर्फ तरमीम करनी पड़ेगी। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इस हवाले से कोई बात हो रही है और अगर इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होते फिर क्या होगा? यार आप बात कर रहे हो कि हल्का बंदियां और साफ और शफाफ इंतखाबात अलग अलग हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात की पहली जमानत और पहली गारंटी तो साफ और शफाफ हल्का बंदियां हैं। तो ये कैसे अलग कर दिया? ठीक है ना? तो अगर हल्का बंदियां साफ और शफाफ हो जाएंगी तो फिर ये इम्कान रोशन है कि इंतखाबात साफ और शफाफ इंशाअल्लाह होंगे। अगर हल्का बंदियां और वाज़ेह रहे 2018 में उस वक्त की आबादी के मुताबिक भी जो ज़िले बनाए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो उसमें इस तरह ज़िले बनाए कि हमारे हर ज़िले में और कुछ ज़िलों में 5-5 लाख वोट साया हो रहे हैं। 5-5 लाख यानी 9 लाख पे एक हल्का बनता है आबादी पे, तो 5 लाख की आबादी हमारी साया हो रही है। तो ज़िले भी इस तरह बनाए कि हमें उन 5 लाख आबादी पर कोई नशिस्त ना मिले। तो ये भी मसाइल हैं। फिर सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास और हैदराबाद की 2 सूबाई और कराची की 2 कौमी असेंबली की और 6 सूबाई असेंबली की नशिस्तों में जिस तरह हल्का बंदियाँ हुई, हमने उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कमीशन ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ऐलान करवाई। मुकम्मल सीटों की रद्दोबदल के हवाले से उन्होंने क्या है? 20 दिन की बात थी कि आप इसी साथ एक पैरेलल शेड्यूल भी चला के जो है वो चले। आपने कहा एक पैरेलल शेड्यूल भी चला के चले ताकि इंतखाबात में ताख़ीर ना हो सके। उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स था? उससे बात ये कि नई हल्का बंदियों का पहला मुतालबा जो है वो एमपी पाकिस्तान का था। अब इन हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात कम अज़ कम 6 माह जो है वो डिले हुए। क्या एमपी पाकिस्तान का कथा इस्तेमाल किया गया इंतखाबात की तारीख में? देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, मुद्दत तो आप दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा, हमारी तजवीज़ है कि हम कम से कम वक्त में सारी आईनी ज़रूरियात को पूरा करें। मेरे ख्याल में अब उसूलन तो तसल्ली और तशक्की हो जानी चाहिए। फिर भी अगर पॉलिटिक्स ये करनी है तो पीपल्स पार्टी जिसमें मर्दमशुमारी के नताइज को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मान लिया, तो उन्हें नहीं मालूम था कि अगर यहाँ मान लेंगे तो बाहर जाएंगे तो सबसे पहले हल्का बंदियाँ करनी होगी। तो आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है इतने दिनों के बाद? इसका मतलब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ सीटें जा रही हैं भाई। पीपल्स पार्टी के हवाले से तो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो विद्यार्थी रहते हैं वो पीपल्स पार्टी के उस उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आपने इलेक्शन की बात की। क्या सिंध में हमेशा एमपीओ को पीपल्स पार्टी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे और मुख्तलिफ इलाक़ जो सिंध के बड़े टाइम अहमद बदियाती पीपल्स पार्टी के। हमने ये सारी बातें, पुलिस इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया 15 सालों से वन साइडेड है, एक तरफा है। अपनी सियासी वाबस्तगियों के साथ सूबाई वडेरों, जागीरदारों और पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए उनके मफादात के साथ उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को गैर जागीरदार बनाने की ज़रूरत है और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मेयर है पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी न्यूट्रलाइज करिए। ये बात अच्छा फारूक भाई, के बाद सबसे ज्यादा शोर मचता है धांधली का। इलेक्शन कमीशन ने कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध को बुलाया है। सर, इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा शोर धांधली का मचता है। क्या इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने आपको यकीन दहानी करवाई है और आपने कोई ऐसी तजावीज़ दी है जिससे साफ शफाफ इंतखाबात हो और इंतखाबात की शफाफियत पे कोई उम्मीद उठा सके? देखिए, इलेक्शन से पहले की धांधली अगर रोकी जाए ना, तो इलेक्शन वाले दिन धांधली को रोकना आसान है और फिर पोस्ट इलेक्शन रिगिंग को भी रोकना आसान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो बंदोबस्त हो रहा है वो
प्री इलेक्शन रिगिंग को रोकने के लिए मुकालमा हो रहा है और गुफ्तगू इलेक्शन रिगिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी हुई, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग के मुख्तलिफ एरियाज पर भी बात हुई। तो हम ये समझते हैं कि आरटीएस का सिस्टम ख़त्म करके जो सिस्टम लाया जा रहा है वो ज़्यादा मोतबर नज़र आ रहा है। उसको हम और स्टडी करेंगे और अपनी राय देंगे, लेकिन वो आरटीएस का ड्रामा इस बार नहीं होगा। मैं एक बात और कहूँ कि ये पीटीआई भी जो अब उतावली हो रही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, हमारी बला से हो जाए, लेकिन बात ये है कि भाई ये तो आपका मौक़िफ़ था कि नई मरदमशुमारी होगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपने अपनी हुकूमत के दौरान कहा था कि नई मरदमशुमारी होगी और नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्काबंदियाँ होंगी और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। तो अब आप अचानक जो है वो ये क्या सूझी के एक आइन का तकाजा तो पूरा हो लेकिन दूसरा ना हो, तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। फारूक भाई, आपने फरमाया इलेक्शन के बाद जो आपने आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी है? देखिए, अभी तो इंतखाबात की बिसात बिछ रही है, अभी तो आगाज है। आज की मीटिंग से हम फारूक भाई, लेकिन मेरे ख्याल में ये मरहले आएंगे, आपसे बातचीत होगी, माजी में भी होते रहे, हम इलेक्शन लड़ते रहे। फारूक भाई, इलेक्शन में ताख़ीर के आपने खदशात का इजहार किया, क्या ऐसे अवामिल मौजूद हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो? मैंने तो आपकी तसल्ली और आपके सवालात जहाँ से आते हैं जिन सियासी जमातों के मफादात, ये सवाल अगर ऐसा होता, पीपल्स पार्टी इतना आईन पर अमल करती है, एक बल्दियाती इंतखाब उसने वक्त पर कराया है। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसलों के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराएं। तो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, जहाँ अपना मफाद हो तो आइन के तकाजे इंतखाबात का दौरानिया उसी के मुताबिक इलेक्शन हो, और बल्दियाती इंतखाबात की बारी हो तो साल ना हो हमारी बला से। ये पीपल्स पार्टी के दो चेहरे हैं, ये मुनाफिकत है, आइन से खिलवाड़, ये पीपल्स पार्टी की रिवायत है। आइन की आड़ लेके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और पूरे सिंध पर और मसनूई अक्सरियत से जिस तरह सिंध के शहरों के वसाइल, ज़मीनों, इख्तियारात, इक़्तिदार पर और कब्ज़ा किया है, लूट मार की है। 40,000 अरब रुपए 15 साल में कहाँ खर्च किए आए, मेरे साथ टाकरा करें पीपल्स पार्टी वाले, यहाँ उनको खड़ा कर दें। 40,000 अरब कहाँ गए भाई, तो बताएं। फारूक स्टार साहब, कराची तो छोड़े, नवाबशाह लाड़काना में नहीं लगे तो गए कहाँ भाई? फारूक स्टार साहब, आपके ख्याल में कितने माह में इलेक्शन हो जाएंगे? यार फिर वहीं पर बात आ जाती है, आइन के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए जो इंतखाबात के इनेकाद से जुड़े। सर एमकेएम में